This is the lecture number 7 for the chapter Arithmetic Progression for the class 10th, and in the last lecture we have done up to question number 3 of the third exercise of your NCERT book. Now in question number 4, what it says that how many terms of this AP will give the sum equal to 636. तो इसका मतलब हमें SN given है. How many terms? The sum of n terms, जिसमें first term 9 है और common difference 17 minus 9 that is 8. तो हमें ये पता है, तो you can use the formula n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो you'll get a quadratic equation है, आपके पास एक quadratic equation बन जाएगी. तो n by 2a आपके पास 9 है, common difference हमारे पास 8 है and equal to 636. Multiply and open the bracket. You are getting this equation as 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0. तो आप इसको फैक्टराइज करिए. When you factorize this by splitting that middle term, you get 4n square is equal to 53n minus 48n. इन दोनों का डिफरेंस 5 है और माइनस 636 is equal to 0. तो आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे, यू आर गेटिंग 4n plus 53 into n minus 12 equal to 0. तो n की वैल्यू एक माइनस 53 अपॉन 4 आ रहा है, माइनस 53, और n is equal to 12. So this cannot be the number of terms because the number of terms cannot be fraction or negative. So the number of terms are 12. It means that 12 terms of this AP will give the sum 636. So this is the question number 4. SN given था, A given था, D given था. You have to find the how many terms will give the sum this. This was also in the question number 3, but it is written in the different form में given था. In question number 5, what it says that the first term of an AP is 5. तो first term आपको 5 given है. Read the question from your NCERT book. The last term is 45. इसकी last term 45 given है, and the sum is how much? The sum is 400, and first term is given. You have to find the number of terms and the common difference. We don't know the number of terms. तो आपको ये गिवन है. तो s कितने के इक्वल है हमारे पास? 400 के इक्वल है. तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला n by 2a plus l is equal to 400 because we know the last term. So n by 2 5 plus 45 is equal to 400. तो हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 16 सॉल्व करने पर. एंड यू हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म इज गिवन विच इज हाउ मच? 45. तो a plus n minus 1 into d is equal to 45, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें 16 पता ही चल गई हैं. तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5, तो 16 minus 1 into कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 45. सिंप्लीफाई करने पर यह कॉमन डिफरेंस 8/3 यू आर गेटिंग. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. आपका क्वेश्चन नंबर 5 था. s गिवन था, l गिवन था. l मीन्स लास्ट टर्म, तो यू कैन इजिली फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स. Question number 6. It is given that the first term and the last terms of an AP is given. The first term is given as 16. The last term is given as 17. Last term is given as 350. If the common difference is 9, common difference आपके पास 9 है. How many terms are there and what is their sum? कितनी terms हैं इसमें? How many terms are there? So because the last term is given, so for the last term you can see that you can write this. आपको पता है लास्ट टर्म को हम nth टर्म लिखते हैं. तो 17 n minus 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 9. तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल रही हैं इसमें सिंप्लीफाई करने पर, एंड दे आर कमिंग आउट टू बी 38. अब आपको इतनी टर्म्स का सम पता करना है. हाउ मेनी टर्म्स? तो S38 विल बी n by 2. ये वाला फॉर्मूला लगाइए बिकॉज हमें लास्ट टर्म पता है. तो 38/2 फर्स्ट टर्म पता है एंड द लास्ट टर्म पता है, एंड सिंप्लीफाई इट. यू आर गेटिंग दिस 6973. द सम ऑफ टर्म्स. पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP. 7th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. शुरू की 22 टर्म का सम हमें पता करना है, जिसका कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 7, और इसके 22nd टर्म गिवन है. 22nd टर्म गिवन है 149. तो 22nd टर्म का मतलब है a plus 21d. अब वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ a, हमें कॉमन डिफरेंस पता है. कॉमन डिफरेंस है 7, तो 149. तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा 149 minus 145.
4 दैट इज 5, इसकी फर्स्ट टर्म 5 आ गई। और आपको पता क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सम S22 पता करना है। नाउ यू कैन फाइंड S22, कितना हो जाएगा n/2 2 into A प्लस n-1 into D, कॉमन डिफरेंस 7 गिवन है, सिंप्लीफाइड 1661 यू आर गेटिंग। You take your time to calculate, to do the calculation. Take your time अपना calculation करने के लिए, make the rough column, take your own time to do the calculations. See it. This is the question number 7. Now in question number 8, what is given? If the sum of first 7 term of an AP is 49, शुरू की 7 term का sum 49 given है, and that of 17 term, the sum of 17 term is given as 289. You have to find the sum of first n terms. तो S n आपको पता करना, you'll get in terms of S. Now when the sum of when the sum of 7 terms and the 17 terms are given, you'll get a linear equation in 2 variable, n/2 2a plus n-1 into D is equal to 49. तो 2a plus 6d is equal to 49 into 2 upon 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यू आर गेटिंग a plus 6d is equal to 7 आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। n/2 2a plus n-1 into D is equal to हाउ मच, 289। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 2a 6d 16d 289 into 2 upon 17, क्रॉस मल्टीप्लाई 17 जार और 2 कॉमन लेकर के 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट हाउ मच, a plus 8d इज इक्वल टू 17। यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल होकर के ये आ रहा है आपका 2 से डिवाइड करने पर a plus 3d, ठीक है। सो दीज आर द 2 इक्वेशंस। नाउ यू कैन सॉल्व इट साइमल्टेनियसली टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ हाउ मच, a and d। 2 इक्वेशंस आपको पता है, यू कैन सिंप्लीफाई इट। माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10, d आपके पास 2 आ गया। आपको पता क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पर पहले आप a पता करिए, 3 into 2 इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 7 - 6 1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। नाउ यू कैन फाइंड Sn, n/2 2 into a plus n-1 into D which is 2, and you will get this answer in terms of n की टर्म्स में ही आएगा जो कि n स्क्वायर आ रहा है। This is sum of n terms. जब sum of n terms पता करना है तो it means the answer will be in terms of n. So the sum of 7 terms and the sum of 17 terms are given, and by using the formula you are getting 2 equation in terms of a and d, which you can solve it simultaneously to obtain the value of a and d, जिसमें a और d पता कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 था ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। Now, after that, we have question number 10, which says that nth term of an AP is given, which is equal to 3 plus 4n. 3 plus 4n आपको nth term given है, and you have to find the sum of first 15 terms in each case. Show that a1, a2, a3 up to n form an AP. पहले तो हमें प्रूफ करना है कि AP बना रहा है, तो पहली टर्म निकालो, 3 plus n की जगह 1 रख करके 7 आ जाएगा, n की जगह 2 रखो, 3 plus 4 into 2 it will be 8 plus 3 11। थर्ड टर्म निकालिए, 3 plus 4 into 3 12 plus 3 it will be equal to 12 plus 3 15 and so on। तो 7 11 15 and so on। तो पहला कॉमन डिफरेंस 11 - 7 कितना आ गया, 4। दूसरा कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें भी 4 आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो देयरफॉर ये AP है, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, सम ऑफ 15 टर्म्स पता करना है, तो n/2 2 into a प्लस n-1 into d, कॉमन डिफरेंस इसका 4 है। तो सिंप्लीफाई करने पर इसका जो सम आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 525। पहले मैंने इसकी शुरू की 3 टर्म निकाल करके आई हैव शोन दैट इट इज कांस्टेंट इक्वल आ रहा है, तो इट इज एन AP। तो सिमिलरली यू कैन डू इट्स सेकंड पार्ट। पहले आप शुरू के 3-4 टर्म निकाल, मैंने इसमें 3 टर्म्स फाइंड करा है, आप फोर्थ भी काइंड करके 3 कॉमन डिफरेंस निकाल करके इक्वल करके दिखा दीजिए। सो इट मीन्स इट इज एन AP बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट ऑल्सो बिल्कुल सेम, यू कैन डू योरसेल्फ। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10,
इन 11 इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, शुरू की n टर्म का सम हमें गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर. ठीक है, इट इज अ गुड क्वेश्चन, बी वेरी केयरफुल. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली यू कैन फाइंड द थर्ड टर्म, द 10th टर्म एंड द nth टर्म. तो इसको डायरेक्टली ऐसे ना करके आपको क्या क्या फाइंड करना है. देखो, यू हैव टू फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, पहली सम पता करनी है जो कि S1 हो सकता है. आपको और क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, शुरू की दो टर्म फाइंड करनी है, या आप इसको T1 प्लस T2 निकाल के कर लीजिए. देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द सेकंड टर्म पता करना है आपको. देन यू हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म पता करना है, एंड यू हैव टू फाइंड द 10th टर्म ऑल्सो, एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म पता करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन यू डू, यू कैन इजीली फाइंड द सम ऑफ nth टर्म. यू कैन फाइंड, आप इसकी nth टर्म पता कर सकते हैं, आप इसकी nth टर्म, ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको. nth टर्म का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1. ये करके आप ये सारी टर्म बड़े आराम से निकाल सकते हैं. तो व्हाट इज Sn तो आपको पता ही है 4n माइनस n स्क्वायर. And how can you get Sn minus 1? You can obtain by replacing n by n minus 1. तो ये आपके पास Sn minus 1 आ जाएगा. ये nth टर्म का फॉर्मूला ये आपको लर्न कर रही है. When you know Sn, you can easily find Tn. Sn आपको पता है तो आप Tn इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये लर्न कर लीजिए आप. तो मल्टीप्लाई एंड ओपन द ब्रैकेट, यू आर गेटिंग दिस एज 5 माइनस 2n. क्वाड्रेटिक जो सम होता है हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोम होता है, ये लर्न कर लीजिए. और nth टर्म जो AP का होता है हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है. लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2. सो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस AP, जो कि हमने लास्ट पार्ट पहले कर लिया. अब आप इजीली पता कर सकते हो. तो पहली टर्म निकालने तो n की जगह आप 1 रख दीजिए, यू आर गेटिंग 3. अब S2 या शुरू की दो टर्म का सम पता करना है, या तो S2 n की जगह 2 रख दो, सम ऑफ टू टर्म्स आ जाएगा. या पहले आप सेकेंड टर्म निकाल लीजिए, यहाँ पर n की जगह 2 रख करके, तो कितना आ रहा है 1. एंड शुरू की दो टर्म का सम हो गया जिसमें पूछा गया 3 + 1 दैट इज 4. सेकेंड टर्म हमने निकाली ली है. थर्ड टर्म n की जगह 3 रख लीजिए, n की जगह 3, तो 5 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज -1 आ रहा है. थर्ड टर्म भी आ गया हमारे पास. 10th टर्म निकाल लीजिए n की जगह 10 रख करके, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 10 दैट इज माइनस का 15. इसकी 10th टर्म हो गया. nth टर्म हमने पता कर लिया. तो दिस इज बेटर कि आपको पहले nth टर्म पता कर लीजिए, देन इट विल बिकम इजी. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू नो द Sn यू कैन इजीली फाइंड द Tn बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. हमेशा ध्यान रखिए जो Sn होता है AP का, सम ऑफ n टर्म हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और जो nth टर्म होती है AP की हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल आता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 था ये आपका. Now what in question number 12 says? Question number 12 में क्या है? Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. आपको उन first 40 positive integer divisible by 6, तो 6 + 12 + 18 और कितनी टर्म का सम निकालना है. यहाँ पे गिवन है 40 टर्म का सम निकालना है. तो क्वेश्चन इजी हो गया कि शुरू की 40 टर्म का सम निकालना है जो 6 के मल्टीपल्स हैं या 6 से डिविजिबल हैं. तो ये 6, 12, 18 एंड सो ऑन. तो ए आपको पता है 6, कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 6 दैट इज 6, और S 40 निकालना है. तो यू कैन फाइंड n by 2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस आपका 6 है. तो सिंप्लीफाई करने पर ये आपके पास आ रहा है 4920. 4920 ये आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 था NCERT बुक का. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन थी. हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन? 40 टर्म का सम निकालना है, क्योंकि 14th क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना पड़ेगा. 13 में भी नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है. नंबर ऑफ टर्म्स यू कैन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. शुरू के 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का आपको सम निकालना है. तो आपको 15 टर्म्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, पहली टर्म भी गिवन है. कॉमन डिफरेंस आपका 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स 15 है. तो ये भी आसान हो गया. S 15 निकालना है आपको. तो n by 2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है आपके पास? 8 है. सिंप्लीफाई करिए, यू आर गेटिंग एज 916 द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन मल्टीपल ऑफ 8. इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता थी.
क्वेश्चन नंबर 14 में नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता, यही डिफरेंस है. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. वो ऑड नंबर जो 0 50 के बीच में है, मतलब 1 + 3 + 5 अप टू 49. सारे ऑड नंबर जो 0 50 के बीच में है. तो इसमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है हमें, और इसकी लास्ट टर्म पता है, nth टर्म. हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, कितनी टर्म का सम निकालना है. तो आप पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे. यही डिफरेंस है इस वाले क्वेश्चन में और 12 और 13 में. तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है. इसमें पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे जो कि 25 आ रहा है. नंबर ऑफ टर्म्स में आ रहा है 25. अब इसमें 25 टर्म का सम निकाल लीजिए. S25. तो इसमें लास्ट टर्म पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, n/2 a + है. तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई 25, फर्स्ट टर्म पता है 1 और लास्ट टर्म पता है 49. तो n/2 ये सिंप्लीफाई करने पर आपके पास आ गए 625. So this is the question number 14 of the third exercise of your NCERT book. We'll continue the next lecture. Thank you.